Amal, first of all, thank you so much for doing the interview, for taking out the time, and hope you are doing fine. Hi, thank you so very much for having me on your channel. I'm absolutely fine. Hoping the same there. You guys are Yeah, okay? yes, You're yes, in States, I definitely. believe. या डेफिनेटली ओके सो अमाल जैसे कि हम सब जानते हैं आपने छोटी सरदारनी में बहुत ही खूबसूरत और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निभाया था एंड आप निमृत को जो है वहां से जानते हैं तो इससे पहले मैं आपसे सवाल पूछना शुरू करूं मेरा सबसे पहला सवाल है कि जितना भी आप निमृत को जानते हैं किस तरह की लड़की है कैसी कोस्टा रही है आपके साथ तो इसके दो आंसर्स हैं। पहले कि वो को स्टार कैसी है, दैट्स अ प्रोफेशनल थिंग। या शी हैज बीन एंड शी इज utterly प्रोफेशनल। उसका कॉल टाइम अगर 9 a.m. है तो you'll find her on set by 8:50 or 55 a.m. latest. She gets ready on time. She's through with her lines before the scene is being shot or rehearsed. Or she's very open in the terms that, for example, if you and me are doing a scene, you have a different perception, I have a different perception, तो वो मिड पॉइंट पर आती है, वो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनती है और उसको समझती है। एंड देन रैशनली आप एक सीन को डेवलप करते हैं जो कि निमृत के साथ पॉसिबल है। कई बार कुछ एक्टर्स के साथ ये पॉसिबल नहीं होता। जी तो शी हैज बीन अ वंडरफुल कोस्टार एज अ ह्यूमन बीइंग। शी इज I'll say little opposite because as a professional, she's very mature. As a human being, she's still a kid. या She's still growing up. She's still seeing the life. Having said that, she has a very good exposure. She's well traveled. She's well read. She comes from an background from where, her mother is a principal in the school. Her father serves the army. So after coming from that kind of a background, I'm sure you become very strong and राइट independent in your own thinking. And that is what Nimrit is. राइट राइट सो अमाल अगर आप बिग बॉस 16 ओके उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको कब पता चला कि निमृत जो है बिग बॉस में जाने वाली है और जब आपको पता चला नोइंग निमृत एज अ पर्सन क्या आपको लगा था कि निमृत श्योर है जाना चाहती है बिकॉज वो घर कैसा है हम सब जानते हैं तो व्हाट वर योर थॉट्स व्हेन यू गॉट टू नो दैट निमृत वाज गोइंग टू बिग बॉस 16 I was very excited because knowing Nimrit na हमेशा challenges को look forward करती है. ओके She's a creative person. She always in the need and want of breaking the monotony. Monotony को break करेगी, वो अपने comfort zone से बाहर जाएगी और यही उसकी constant journey रही है अभी तक की। वो पहले लॉयर बनी, लॉयर से फिर वो एक्टर बन गई, एक्टर के बाद उसने रियलिटी शो किया। सो दिस इज व्हाट शी लुक्स फॉरवर्ड टू एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि क्योंकि ये उसके हिसाब का घर नहीं है जैसे हम सब लोग जानते हैं। And it's very difficult to be in Big Boss. It's a very brave step to show your vulnerable side to entire India and breaking that image of Choti Sadani and portraying the real self. Then I think it takes a lot of guts, because sometimes we get scared. Ki, what would people think? Would they like my this version or not? And we become judgmental about ourselves, which is not the case with Nimrit. And I'm very confident that she will come back with a trophy, and she is doing very well, for sure. राइट राइट सो अमन बिग बॉस घर में जब निमृत गई थी उससे पहले भी कुछ बात हुई थी कुछ आपने एडवाइस दी थी या फिर आपको जब घर में पहुंची उसके बाद ही पता चला नहीं, देखिए क्या होता है कि बिग बॉस जाने से पहले एक एनडीए साइन होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ओके जिसकी वजह से निमृत ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। So once she entered and her promo was on air, that is when I got a call from her father and her mother informing that Nimrit has now gone to Big Boss, and we all were very happy about it. Yeah. राइट राइट ओके तो अमन आप जितना भी बिग बॉस फॉलो कर पाए हैं ये सीजन हाँ जी। या पहले तो जानना चाहेंगे कि एज अ व्यूअर एंड एज अ फ्रेंड आपको निमृत का गेम कैसा लग रहा है आप क्या लग रहा है कि ये उनकी स्ट्रांगनेस है ये उनकी वीकनेस है गेम में अगर उनको फेर बदल लाना है एनीथिंग व्हिच यू वांट टू से यार देखो, फेर बदलना आप प्लान नहीं कर सकते बिग बॉस जैसे घर में, बिकॉज बिग बॉस ना वो नाम एक पर्पस के लिए रखा गया है। द मोमेंट ही अंडरस्टैंड्स द बिग बॉस कि कोई एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, वो पैटर्न को ब्रेक कर देते हैं टास्क देकर। तो आपकी सारी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह जाती है। So I think she's playing extremely well because of two reasons. A, वो अपने आप को प्ले कर रही है, she's playing herself. Secondly, she is very vulnerable and very open to the situation. As in when वो
रिएक्ट कर रही है, पहले सिचुएशन को एक्सेप्ट करती है, फिर उसको अपना रिस्पॉन्स देती है। तो आप रिएक्शन कह लीजिए, रिस्पॉन्स कह लीजिए, सो फार सो गुड। इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो रियल लाइफ में हम लोगों का इमोशनल आउटबर्स्ट होता है जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं। जी जी। तो जो उसका इमोशनल आउटबर्स्ट था वो मुझे बेस्ट लगा, बिकॉज आई थॉट कि यस, ये हम्म निमृत है, ये कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रही। शी इज बीइंग सो ऑनेस्ट, जो वो फील कर रही है वो बिहेव कर रही है। हम्म तो उसने कोई फिल्टर नहीं रखा हुआ, एंड आई एम रियली हैप्पी द वे शी इज प्लेइंग इट। Besides the point he she wins or not, though I'm very much sure that trophy is gonna be with her. I am very happy that she's being able to be herself in front of so many cameras. राइट राइट। अच्छा अमल, ये बात बताइए, जैसे आपने भी अगर आप फॉलो करें तो आप ये जानते हैं कि निमृत और कलर्स का एक और चेहरा है प्रियंका, कॉन्स्टेंटली जो है ऐसा हमें दिख रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के पीछे पिटेट कर रहे हैं बाय द मेकर्स, या फिर शायद सच में ऐसा घर में है। देयर आर लॉट ऑफ सेक्शन क्या ऑफ, कर रहे हैं? yeah, so there are a lot of section of people, viewers who think that कि निमृत कहीं ना कहीं प्रियंका को हराने में इतनी ज्यादा घुस गई हैं कि वो अपने गेम को अच्छा नहीं कर पा रही है। व्हाट डू यू फील ऑन दिस लाइन? सी, ईच टू इट्स ओन। अगर व्यूअर ये सोच रहा है तो आई एम श्योर उसके पास अपने रीजंस होंगे, एंड आई रिस्पेक्ट इट। बट जहां तक मेरा नजरिया है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए होता क्या है ना, एक घर है, उसमें सारे लोग बंद हैं, लिमिटेड लोग हैं, कंटेस्टेंट्स तो लिमिटेड ही होते हैं ना, ना आप उसके अलावा किसी से बात कर सकते हैं ना मिल सकते हैं। तो उनमें से आपका कोई एक या दो ऐसे होते हैं जो आपके फेवरेट बन जाते हैं, जैसे अब्दू और निमृत हो गए। हम्म हम्म एंड इट इज बट नेचुरल, एक और दो होते हैं जिससे आपकी टिफ हो जाती है, एंड दैट इज हाउ द लाइफ ऑल्सो गोज ऑन। जब हम एक राइट। सोसाइटी में रहते हैं, कुछ लोगों के साथ हमारी बहुत बनती है, कुछ लोगों के साथ हमारी नहीं बनती है। तो आई थिंक उन 24 आवर्स में से हमें सिर्फ 1 घंटा दिखाया जाता है, और उस 1 घंटे में शायद जो नहीं बन रहा है पार्ट वो ज्यादा दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से व्यूअर्स की एक परसेप्शन बन गई है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। बट मैं ये बताना चाहूंगा, निमृत बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो पर्सनल एजेंडा लेकर या पर्सनल ग्रजेस रखकर जीने वाली लड़की ही नहीं है। राइट चीज राइट लाइक लिव एंड लेट लिव के फॉर्मूले में लिव करती है वो। राइट राइट। सो यू डेफिनेटली फील कि निमृत का जो पूरा फोकस है प्रियंका पे नहीं है, एंड शी इज नॉट जेलस जैसे कि प्रियंका के फैन लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग। नहीं नहीं, वो क्या होता है ना, वो पोर्ट्रेयल कई बार ऐसा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप बात कर रहे हैं, हम्म। आप मेरे पहले 2 क्वेश्चन हटा दीजिए, लास्ट के 2 क्वेश्चन हटा दीजिए, और बीच का हाँ। सिर्फ फैंस को दिखाइए, तो लोगों को राइट। लगेगा सिर्फ इतनी सी बात हुई है। Viewers are very innocent, या। they're very naive, and I respect that. I'm saying that in all the good sense. They are so gullible कि उनको जो दिखाओ ना, उनको लगता है सिर्फ यही सच है। नहीं, हमें सिर्फ 45 मिनट देखने को मिलता हम्म है, रिकॉर्डिंग 24 घंटे से मिलता हम्म है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रियंका और निमृत बहुत कोऑर्डिनली, और मुझे ऐसा लगता है आपस में चीजें को डिस्कस भी करते होंगे, बट हम्म मेकर्स उसको नहीं दिखाते हैं। मेकर्स का अपना एक वैलिड रीजन होता है, बिकॉज पीपल वांट टू सी समथिंग एल्स, और वो स्पाइस डालना चाहते हैं शो में, मेकर्स कुछ और दिखा देते हैं। बट नहीं, राइट। ऐसा नहीं है कि निमृत इज फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन प्रियंका और अब्दू और एनी एक्सवाइजी। निमृत खुद पे ही कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है यार, शी इज जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द टास्क एंड द थिंग्स व्हिच आर कमिंग अप। Right, right, right. But do you consider Priyanka as a strong contestant, not related to Nimrit, but अगर मैं सिर्फ खाली एक पूछूं, तो do you consider Priyanka as a strong contestant in Big Boss house? यार, I'll be very honest to you, see, I'm an actor, हम्म और आई एम ऑल्सो इन अ पोजिशन कि कल को मुझे बिग बॉस ऑफर किया जा सकता है, तो आई कैन एम्पैथाइज नाउ, एंड आई कैन हम्म गो थ्रू द प्रेशर हम्म ऑफ इवन डिसाइडिंग वेदर टू एंटर और नॉट। हम्म जिस भी कंटेस्टेंट ने ये डिसाइड भी कर लिया ना कि मैं अंदर जाऊंगा, मैं हम्म इतने सारे कैमरास के सामने 3 महीने तक वनरेबल होऊंगा, विदाउट मेकअप रहूंगा, अपनी सच्चाई दिखाऊंगा, तो वो हम्म ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा निमृत इज दी बेस्ट, मैं ये नहीं कहूंगा प्रियंका इज दी बेस्ट। व्हाट आई वांट टू से इज कि यस, एवरीबॉडी इज वेरी गुड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, हम्म बट नोइंग निमृत, हर एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंग्स इज वेरी पॉजिटिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। वो बीच में राइट आपको शेकी लग सकती है, बट इन दी एंड ना वो बहुत रैशनल निकल के आएगी, राइट। लॉजिकल निकल कर आएगी, वो इमोशंस में बहेगी हम्म। अच्छा, जैसे कि आपने भी बताया कि निमृत के बहुत ब्रेकडाउन्स हुए हैं, उन्होंने खुद एडमिट किया कि उनको एंजाइटी इश्यूज भी है। नहीं। वी लिव इन अ सोसाइटी जहां पे उन चीजों पे भी जज कर दिया जाता है। एज अ फ्रेंड, व्हेन यू रीड दोस कमेंट्स और व्हेन यू गेट टू नो, डज इट फील सैड फॉर योर फ्रेंड और द सोसाइटी? I, yeah, 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 yeah. Thank you for putting up this question. I feel so sad.
but not for Nimrit, for the people. हम्म, I really hope कि कभी उनको कभी भी लाइफ में एक एंजाइटी के बारे में ठीक से समझ में आए और उन्हें पता चले कि नॉर्मल है. हम्म, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आप नर्वस भी हो जाते हो ना तो हमारी सोसाइटी प्रेशर डालना शुरू कर दो. तो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है ना कि हम शोले के फंडे पे चलते हैं. आदमी जो डर गया सो मर गया. हम्म, कि ऐसा नहीं होता. और एड्स भी ऐसे बनती है ना कि वेर इट इज यू हैव टू बी अल्फा मेल और अल्फा फीमेल और समथिंग लाइक दैट. हम थोड़े से नर्वस हो जाते हैं तो पेरेंट्स हमें कहने लगते हैं, अरे डरता है, पागल है, बी कॉन्फिडेंट, क्या होगा देख लेंगे. नहीं, यू हैव टू टेल दैट कि ये डर नॉर्मल है यार. बटरफ्लाई इन द स्टमक इज फाइन. मैं अमिताभ सर का, बच्चन सर का एक इंटरव्यू देख रहा था या पढ़ रहा था, आई डोंट नो. वो कहते टुडे टिल एज, बहुत रिसेंट इंटरव्यू है, बिफोर गिविंग एनी फर्स्ट शॉट ऑफ द फिल्म, फर्स्ट शॉट ऑफ द फिल्म, I still get the butterflies in my stomach. So is that wrong? No, that is absolutely fine. Now, because of nervousness को इतना suppress कर देते हैं कि फिर वो बन जाती है anxiety. फिर हम anxiety को भी suppress करते हैं. हम कहते हैं नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल normal है, किसी ने कुछ जादू टोना करवा दिया है या किसी ने फलाना करवा दिया, ढिमकाना करवा दिया. And no, it's just normal. यार मैं anxious होता हूँ, मैं घबराता हूँ, आप anxious होते हो, आप घबराते हो. We all are humans. So please guys, I'm not judging you, but I'm just praying कि किसी दिन शायद आपको पता चले एंजाइटी क्या है और आप इसको सर्दी खांसी जुकाम की तरह लो और स्टार्टिंग में ही इसको एड्रेस करो इशू. Being nervous is okay. Being anxious is okay. Failures are okay. Don't be so competitive. right. And I'm glad, मतलब निमृत अगर इतना openly कह रही है, निमृत has been and is role model to so many people. वो इतना openly कह रही है तो I'm sure लोग उसकी वजह से कुछ लोग तो influence होंगे positive way में. जी जी. अच्छा अमाल, कुछ लास्ट फ्यू क्वेश्चंस पूछूंगी. ऑफ हाँ कोर्स जी. और अब्दू की एक बहुत ही क्यूट बॉन्डिंग है. हाँ. अब्दू कन्फेस भी किया कि उन्हें निमृत के लिए फीलिंग्स है, एंड साजिद ने समझा कि बस उसको अब आगे नहीं लेके जाना चाहिए. What a lot of viewers also think is that कि निमृत को अब्दू की फीलिंग्स को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था, बिकॉज कहीं ना कहीं अब्दू का दिल टूट सकता था. दिस कमेंट वाज एक्चुअली मेड बाय सौंदर्या इन द हाउस. व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? हाँ जी. यार देखो, मैं लाइक आई सेड ना, निमृत इतनी कैलकुलेटिव है ही नहीं ना यार. तो उसका, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डज अ पर्सन ऑपरेट. either a person is emotional, extremely emotional, or extremely practical, or in between. So निमृत is in between. अब वो कैसे इतना कैलकुलेटिव हो जाएगी, मैं ये बात बोलूंगी तो अब्दू को अच्छा लगेगा, ये बात बोलूंगी तो अब्दू को अच्छा नहीं लगेगा, मैं इस लिमिट तक रोकूंगी. इज इट पॉसिबल? यू ओनली टेल. Now you and me are interviewing. मुझे क्या पता मेरे मुंह से क्या क्या निकलते जा रहा है. Whatever I'm feeling, whatever you're questioning, I'm answering to that honestly, and that is how even Nimrit operates. तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि निमृत उसको कुछ ऐसा दे रही है, wrong indication. And see, स्टार्टिंग में प्यार नहीं होता, स्टार्टिंग में इन्फैचुएशन होती है, और इन्फैचुएशन दोस्तों में बहुत नॉर्मल है ना, बिकॉज यूर ऑपोजिट सेक्स. और तो इन्फैचुएशन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. ऐसा थोड़ी ना कि बरसों का प्यार है दिल टूट जाएगा. इससे अच्छा, बल्कि बहुत अच्छा है, पता है क्या, अगर ऐसा हुआ अब्दू के साथ तो अब्दू विल कम आउट एज अ ग्रोन पर्सन, एज अ मैच्योर पर्सन, बिकॉज these minor heartbreaks या minor failures in your life ना makes you a stronger person and a mature person. So whatever is happening bang on. Touchwood, बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन रही है, जो कि हर रिलेशनशिप में, जो कि ह्यूमैनिटी में बहुत जरूरी है. राइट राइट. अच्छा एक और चीज निमृत के गेम पे हमेशा अब बोली जा रही है कि वो, एक एलिगेशन है कि वो झुंड में खेल रही है, वो शिव के पीछे खेल रही है, सर के पीछे खेल रही है, वो अकेले नहीं खेल रही, उनकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है. डू यू रियली थिंक, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? यार इतने सारे लोगों में आप इंडिविजुअलिटी क्या ही निकाल. देखो, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री तब करता जब मुझे ये समझ में आता कि उसका कोई भी डिसीजन इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा है. मतलब कोई भी डिसीजन लेने की सिचुएशन आ रही है तो वो एस्केपिस्ट बन रही है और वो देख रही है कि ये क्या बोलेगा तो मैं भी वही बोल देती हूँ. तो उस सिचुएशन में तो मुझे समझ में आता है कि झुंड में है. लेकिन यार अगर निमृत को या किसी भी कंटेस्टेंट को एक चीज सही लग रही है और बाकी चार को भी लग रही है तो ऑटोमेटिकली एक झुंड और एक ग्रुप बन गया ना. अब आप उसे कहो कि यार आप तो झुंड में जा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता. अगर आप, ना, आई डोंट बाय दिस. राइट राइट. ओके, तो अमन, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि ऑफ कोर्स आप चाहते हैं निमृत ट्रॉफी जीते, लेकिन अभी जो फिलहाल निमृत के घर में रिश्ते, क्या लगता है कि कौन एक ऐसा इंसान है जो उनके साथ एंड तक टिकेगा, उनका साथ एंड तक देगा, और कौन है जिसे निमृत को थोड़ा बच के रहना चाहिए?
सी इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. मैंने आपको बताया ना, बिग बॉस एक सिचुएशन, एक घर ऐसा जहाँ पे रोज इसलिए मैं कह रही हूँ हालात अभी के situation हिसाब से, बदलते हैं. ऑफ कोर्स गेम कैन चेंज अभी के हिसाब से एनीटाइम. आई थिंक निमृत और अब्दू का बॉन्ड बहुत अच्छा है. और मैं यहाँ थोड़ा बायस भी हो रहा हूँ, मुझे भी अब्दू बहुत अच्छा लगता है. नॉट ओनली मी, आई थिंक एवरीबॉडी इज इन लव विद अब्दू. The kind of person he is and the way he conducts himself and the endearing quality of Abdu. मुझे लगता है अब्दू और निमृत लास्ट है. And who can backstab Nimrod? I don't know यार, बैकस्टैप का तो मुझे समझ में अभी तक नहीं आया. I'll be very honest to you. मैं इतना जितना देख पाया हूँ, मुझे ये समझ नहीं आया कि बैकस्टैप कौन करेगा. But I think being in a jungle, you have to be always on your toes and alert. Right. But someone you can trust, I think both the parties, Abdu and Nimrit, should play hand in glove. Because वो दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा ही सोचते हैं. जी. ओके. तो निमृत के अलावा अगर आप बिग बॉस हैं तो आपको सब जो गेम है वो सबसे ज्यादा किसका अच्छा लग रहा है और आपको कौन इरिटेट कर रहा है? ये दो सवाल. Yeah, see, I'll tell you one thing. I'll not at all be political about it. I'll be very honest. देखो, जिनको मैं जितने भी लोग गए हैं, या तो मेरे acquaintances हैं या मेरे दोस्त हैं. तो मैं किसी के बारे में पब्लिकली ऐसा नहीं कहूंगा. सब अपनी तरफ से कोशिश करें. और देखिए, मेरी पर्सनैलिटी एक तरीके की है. जब मुझे उसकी विपरीत पर्सनैलिटी का कोई दिखेगा तो ऑटोमेटिकली वो मुझे इरिटेट करेगा. बट शायद वो किसी और को एंटरटेन करेगा. तो मेरे लिए अभी आई थिंक it'll be a very wrong thing on my part to quote somebody like that. Yeah. Okay, then whose game are you liking, if you can say at least that? Nimrit and Abdu, yeah. And even Nimrit and Abdu, yeah. These two. Bindas. Yeah. And do you have views on the rest of the contestant which you want to share? Hanji? Do you have any views on the rest of the contestants? Yeah. The only thing is ki like I mentioned before, they are very brave, they are very strong, that first of all they took the decision to be part of Big Boss 16, and I'm wishing all of them all the very best. And I like to tell audience कि आप ये जो भी 3 महीने में सबका रूप देख रहे हो ना, this is not the real thing. Yeah. Because इनको extreme situation में डाला गया है. तो ये इनके extreme reactions हैं. So don't judge their personality कि अरे यार ये तो रियल लाइफ में हमेशा गुस्सा ही करता होगा, ये रियल लाइफ में हमेशा ऐसी एग्रीवेट होता होगा. नहीं, ऐसा नहीं होता. ये एक्सट्रीम सिचुएशंस में होता है. और वो एक्सट्रीम सिचुएशंस का देखिए, ऑडियंस को मैं सिर्फ एक छोटी सी आपका 5 मिनट नहीं 15 सेकंड का टाइम लूंगा, एक चीज समझाऊंगा. हमारी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वर्क करती है ड्रामा पे, है ना. और लोगों को भी वो ड्रामा देखने को पसंद है. इसलिए इनको ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन में डाला जाता है ताकि एक्सट्रीम रिएक्शन दे और कुछ ड्रामेटिक हो जाए. बट प्लीज किसी भी व्यक्ति को जज करना इसके बेसिस पे सही नहीं है. So don't make any judgments. Right. So on this note, thank you so much, Amal. I think if you will ever go and participate in such a reality show, you will be the most popular contestant of the show. But thank you so much for all the talks. Thank you so very much. Thank you so much. Bye. Take care. Bye. I'm Nimrit Kaur Ahluwalia and you're watching Glitz Vision. Hi, this is Avinesh Rekhi and you're watching Glitz Vision USA.